जो ये वर्ड है माँ, कैसे डिस्क्राइब करोगे? Selfless love. अनकंडीशनल लव, एब्सोल्यूट लव. मैं थोड़ा सा अरे इधर मत जाओ, Just a वैसा मत disclaimer, I'm करो। not talking about my wife, I'm just talking about in हाँ general. हाँ हाँ, Just a disclaimer. क्या बात बोल दी, ये To be मेन on a पॉइंट, इसको safer Just a disclaimer. इसको अंडरलाइन किया था। तू होगा अपनी तो जैसे तैसे आपका क्या हाँ, होगा? शादी के 3 साल बाद वी हैड अ बेबी. उन 3 साल से भी ज्यादा आई थिंक सो आई हैव स्टार्टेड लविंग हर, रिस्पेक्टिंग हर एंड केयरिंग फॉर हर. हर माँ में है ना एक गुंडा भी होता है। उस वक्त तुमने अगर उसको ना बोला तो तलवारें निकल सकती हैं। मॉम तो कहाँ जाने वाली है, सो वो एक बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड वाली सिचुएशन होती है, बट उनकी वैल्यू तभी होती है जब वो नहीं होते। Why can't I pick up a call and talk to my mom? वो इमोशन आपकी वाइफ या आपके बच्चे कभी समझ ही नहीं पाएंगे दैट कितना हॉलो हम लोग फील करते हैं विद इट। हाय गाइस, हैप्पी मदर्स डे इन एडवांस। आज का एपिसोड बहुत ही स्पेशल होने वाला है मॉम्स अनम्यूटेड पे। जनरली वी लिसन टू द स्टोरीज ऑफ मदरहुड from the mothers themselves, about their sacrifices, about their experiences. But today we are going to turn the mic to the dads. We have 3 incredible dads with us today जो बात करने वाले हैं motherhood, mothers, their sacrifices, their struggles, their experiences and everything behind the scenes. What you can expect from this episode? Lot of laughter, maybe a few tears and so many truth bombs. So guys, grab that cup of coffee and let's dive in. So gentlemen, thank you so much for being here on this episode of Moms Unmuted. Generally, Mother's Day pe we always hear it from the moms, the mothers, about their sacrifices, about their experiences, about their struggles. But today we are turning the tables and we are unmuting the voices of dads. Because dads ही वो लोग हैं जो 100% closely ये सारा struggle, ये सारी motherhood journey observe करते हैं. So before diving into this discussion, I would like you to briefly introduce yourself for our audience. I'm Manthan Shah. I'm a founder of Asopalo Realty. It's a real estate company based in Vadodara, and also I'm a part of Credai Vadodara. So hi, I'm Ashish. So I'm an ex radio jockey. I'm also into podcasting. I'm into real estate. I'm also very passionate about dogs. So I have currently Gujarat's biggest dog park by the name of Doggers Park. So I run that as well. So hi everyone, I'm Vishak Ahuja. I'm the owner of Baker's Bar. We have multiple outlets in Baroda, and I'm also a vocalist of a band called Goonj. It is one of the oldest bands in Baroda now. And yeah, just control me if I go out of control. ज़्यादा असलियत भी नहीं बोलूं. No, just joking. So we have 3 very creative, एकदम धंधा minded people from Vadodara today with us. So let's start. Mother, जो ये word है माँ, जब हम पहली बार इस word के बारे में सोचते हैं, what is that first thing that comes to your mind? कैसे describe करोगे? Selfless love and boundless. Mothers never judge, I feel, and unconditional love. They're always there 24/7. आधी रात को भी तुम पूछ लो माँ को क्या चाहिए तो माँ will always have the answer. So that's what mothers are all about. Absolute love, like total. My mom is the first love of my life. I repeatedly say this to her also. So yeah, and मतलब वो कभी भी जैसे आपने बोला वो सब जानती है और वो हर बार हर सही हो या गलत माँ तुम्हारे साथ ही रहती है. So that is a mom. So जैसे आप 2 moms को बहुत closely जानते होंगे. One is your wife, who is the mother of your child and your mom. So let's talk about the mother of your child. So जब आपने अपनी wife को पहली बार as a mother देखा after delivery, क्या feel किया? So we had a dog. हमारे घर पे पहले से डॉग था, so she used to take such good care of the dog, and she was like पहले से उसको था कि मैं कैसी मदर बन पाऊंगी, कैसे नहीं बन पाऊंगी, but I saw the emotions that she was carrying for the animal as well. So once the baby came in her hand, and the way she was nervous first of all कि मैं क्या करूंगी, I don't know what to do with the baby, right? अचानक से to 26-27 year old girl आप बच्ची दे दोगे, तो then she'll be confused, but the way she took care of him, and my other girl is just 6 months now. So she's the best mother I could have, given my kids. So Anju, my wife, when she became the mother or when we became the parents, she was, as all mothers and fathers are, she is extremely protective, over caring,
emotional, and she wants to, like all mothers, she wants to give the best. चाहे वो कुछ भी चीज़ हो, मेरे बच्चे के लिए दुनिया की सबसे बेस्ट चीज़ होनी चाहिए. Not always necessarily materialistic things, but from an emotional point of view, as parents and more so as mother, she's always there. So I think this is her biggest quality, that she does not want to miss even on the smallest of things, the smallest of school events or otherwise. उसको वहाँ पे रहना ही है, चाहे उसका बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है, नहीं कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, irrelevant, she's there. After the delivery, when I first saw my wife, पहले तो लौंडे अपने आधा घंटा तो रजिस्टर ही नहीं हो रहा था, ये हो गया हमारे साथ. So that was the first reaction. Actually, guys take some time to sink in, but when I realized, I was like, thank you. Thank you for giving me the best gift of my life. So from being your wife to now being a mother, ऐसा कोई मोमेंट या ऐसा कोई एक्सपीरियंस जब उसको देख के आपको ऐसा फील हुआ, यार सच में शी इज अ सुपर वुमन? Yeah, moms are a superwoman, right? We can't do 5% of what they do. And like hats off to them, the commitment that like it comes from them within. Apart from being very emotional, I don't know whether I should use this word, but हर माँ में है ना एक गुंडा भी होता है हाँ, exactly. कि अगर मेरे बच्चे को कुछ किया, मेरे बच्चे को कुछ हुआ, तो it's going to create a havoc. और मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों की मम्मी बनते बनते वो हमारी भी मम्मी बन जाती है. हाँ, मेरा कैसा है कि आफ्टर द डिलीवरी, इवन अभी कैसे, पहले तो हफ्ता 10 दिन पूरी फैमिली बहुत ज्यादा ध्यान देती है ना कि बेबी आई है. आफ्टर तब तक तो सब सॉर्टेड चलता है. बट व्हेन आई सॉ कि मतलब यार जब भी वो स्लीपलेस नाइट्स और ये सब होती है, हमको तो पता ही नहीं चलता है व्हाई इज द बेबी क्राइंग, भूख लगी है, नींद आ रही है, क्या है, और ये लड़के को कैसे पता कैसे चल जाता है. सो दैट वाज अ मोमेंट, लाइक देयर वर सेवरल ओकेजन्स व्हेन आई वाज टोटली क्लूलेस कि हो क्या रहा है यार. एंड शी न्यू एवरीथिंग. तो मैंने सोचा इसको कैसे आता है, मेरे को क्यों नहीं आता है. सो दैट इज द मोमेंट, दोज वर द मोमेंट्स व्हेन आई यूज्ड टू फील कि इतना मल्टीटास्क भी कर रही है, so how can she do it. So that was a superwoman moment for me. I think one thing that also in my case is like I don't have parents, so there was no support at all when there was a newborn at home. उसने जो कुछ भी किया वो अपने हिसाब से किया. कोई उनकी मम्मी बोलती थी, उनकी मासी बोलती थी, ऐसा कर करके उन्होंने बच्चों को बड़ा किया. So I think it's all the more credit to her with the way, and wherever that we go, उनको, स्पेशली माई वाइफ को, शी ऑलवेज गेट कॉम्प्लीमेंट्स कि यार अंजू तेरे जैसे बच्चे हमने कभी नहीं देखे. एंड यू फील सो प्राउड कि यार शी हैज़ रियली बॉट देम अप इन अ वेरी राइट वे. ऐसा नहीं कि वो मस्ती नहीं करते, मस्ती तो वो भी करते हैं, बट व्हेन दे आर आउट दे आर एक्सट्रीमली डिसिप्लिन्ड एंड दे आर लाइक टू गुड. सो मुझे भी एज अ फादर आई फील सो गुड that they are always in the right hands. आप उनके साथ थ्रू आउट रहे हैं, उनकी मदरहुड जर्नी, प्रेगनेंसी, एवरीथिंग यू हैव सीन. सो व्हाट डू यू थिंक आर द स्ट्रगल्स मदर्स गो थ्रू? So when a girl becomes a mother, there's a big transition that happens, right? Absolutely. Like from her freedom to her habits to her, day in, day out life changes. And when she becomes a mother, she has a responsibility 24/7, right? That even like that switch cannot be turned off, Right. right? And that is the biggest sacrifice that women give. वो एक माँ ही देती है, एब्सोल्यूट सेक्रीफाइस, क्योंकि वो ही उनके साथ 9 months तो पेट में होता है, एंड देन उसके बाद थ्रू आउट द लाइफ एटलीस्ट द फर्स्ट फ्यू ईयर्स एब्सोल्युटली क्रिटिकल. एंड कुछ भी हो, एनी फेस्टिवल, एनी डे, दैट ड्यूटी कैन नॉट बी स्विच्ड ऑफ. एंड द बेस्ट पार्ट इज दे डोंट सी दैट एज अ ड्यूटी, एंड बट स्टिल एट द सेम टाइम दे फील दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दे गेट समटाइम्स गेट फ्रस्ट्रेटेड दैट अभी ये हर बार करना पड़ता है. आई थिंक ये ट्रांसफॉर्मेशन तो है, बट द रियल स्ट्रगल इज विच आई बिलीव इन my case or our case is like when she finds that there is an issue with the child, and when I take it lightly, यार ऐसा तो कुछ नहीं, यार मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है, when you don't understand कि what is the trouble or what is the challenge, वो जब partners में sync नहीं होता है ना, that is the time when a mother struggles the most. कि यार मैं कुछ बोल रही हूँ अपने पार्टनर को और वो समझ नहीं पा रहा है कि दिस इज द इशू विद ईदर माई मदरहुड और विद द चाइल्ड. सो आई गेस वो मुझे आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम अब मुझे समझ में आया है. आई थिंक वी हैव मैरिड फॉर 16 years. अब मुझे वो समझ में आ रहा है कि अगर वो बोल रही है ना, तो इवन इफ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लगे कि ये सही है गलत है, बट उस टाइम पे तो सही बोल दो.
so that her struggle is lower and she becomes, you know, much more easier and calm. Yeah, as Manthan also said कि a girl when she turns into mom तो अलग ही struggles चलते हैं, physical, mental, emotional, hormonal, what all a girl goes through. कि mentally down रहते हैं, mood swings ज़्यादा होते हैं initially, so yeah, that is very difficult. I don't see myself countering such situations in life properly. तो इट इज़ अ बिग डील, एक्चुअली इट इज़ अ वेरी बिग डील कि इतने सारे चेंजेस यार हम लोग कहाँ से हम लोग झेल पाएंगे क्या ये सब? मेन कांट डू दिस, इतने सारे चेंजेस तो वी कांट हैंडल हमारे इसलिए लाइफ ऊपर वाले ने देखो मैन बनाया है। हाँ एक्चुअली सबका अपना अपना रोल। हमारी एक चीज ऐसे नहीं सही होगी, हम लोग उसमें ही मेंटली एक ही तरफ सोचने लगते हैं, बट वुमेन दे गो थ्रू एवरीथिंग एंड मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, उसके बाद बच्चा भी देख रहे हैं, घर भी देख रहे हैं, लीविंग देयर करियर्स, यार वो भी एक मेंटल बहुत बड़ी बात Exactly. इट इज अ वेरी बिग थिंग यार कि मतलब माय वाइफ इज अ डेंटिस्ट, सो शी हैड जस्ट स्टार्टेड, देन वी गॉट प्रेग्नेंट, उसके बाद उसका क्लिनिक रीस्टार्ट करना, so she was going through all this. So yeah, that was a very difficult phase for her also. But yeah, kudos to all the mothers, they go through this with a smile. So Right. that is the biggest achievement for them. That's why बोला ना सुपर पावर. Superpower. एग्जैक्टली सो जैसे मंथन ने कहा कि उनको अपना करियर भी छोड़ना पड़ता है, सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? मतलब हस्बैंड्स का सपोर्ट कैसा होना चाहिए सो दैट यू नो मदर्स भी अपना करियर परस्यू कर सकें, लाइक क्विकली आफ्टर डिलीवरिंग अ बेबी या बीइंग अ न्यू मॉम? Trick question. So उनको लगता है कि हम करियर छोड़ के उनके साथ बैठ जाए, पर वो नहीं हो सकता. हम बट क्यों? मतलब व्हाई इज दिस जस्ट अ मॉम्स ड्यूटी? ऐसा नहीं है. So in like from primitive generation, primitive times, it's always been like a man is the breadwinner of the house, right? And we have to do it. And there are a lot of struggles in new age where doing your business and you know managing things outside the home is also getting very challenging. And we don't get those things in the house. वो हम किसी से बात ही नहीं करते सोनिया. राइट. Right? I don't discuss with my dad also कि dad आज ये दिक्कत हुई. I don't want to give my dad that trouble. So I swallow those struggles. And वो सब चीज़ हम बात करते ही नहीं हैं. Right. And see वो उसकी वजह से क्या होता है, after work hours भी थोड़ा सा स्ट्रेस रहता है. But don't you think the perspective is changing? Yeah, the parenthood has completely changed. मतलब अभी तो मेरे को इस बात में कोई शर्म नहीं है that I do my household chores as well. कोविड के टाइम पे जब था घर पे तो मैंने ही झाड़ू बर्तन आज भी मैं करता हूँ, इसमें कोई बाई नहीं है, तो इसमें कोई शर्म बात नहीं है. when she is working and she is contributing whatever little, ऐसा नहीं कि पूरा घर, लेकिन whatever little that she is doing, then it is, I think emotionally it's my role as well कि मैं उसको कहीं ना कहीं हेल्प करूँ. You know, I don't have a 24/7 house help at home. और अगर वो नहीं आते तो मेरे को करने में कोई नहीं, because it's my house, it's my family, it's my comfort. इसमें कोई गलत बात नहीं है. So yeah, that's the way it is. It cannot be 50-50%, but एक रेशियो, एक कंट्रीब्यूशन का तो होना ही चाहिए. Totally, I agree. 50-50 कभी नहीं हो सकता, I think कभी नहीं हो सकता. parenting में. यार Yeah. इसमें मेरे को तो लगता है we have been brought up in That such a way. Exactly. कि हम लोग ने देखा ही यही है Yes, ना, yes, हमारे yes. दादा I agree. देख लो, पहले तो और भी खतरनाक चल रहा था ना. So how उसके has बाद that moms- shaped you as a partner? मतलब हम अपने डैड्स को देखते थे of course कि वो लोग घर में कुछ हेल्प नहीं करते थे. यार वो हम अपनी बीवियों से सीखे हैं, आई फील कि मतलब आई एम श्योर जब भी हम लोग की शादी हुई थी वी वर quite rigid, but over the हाँ. time we have become better. Yes. That is getting better. That is evolvement. Yes. So we have evolved as human beings, as husbands also. Yes. Right. So that has happened. But फिर भी वो एक हमने देखा, एक तरीका देखा है कि पैसा बाप कमाया है या दादा पहले कमाते थे या फादर कमाया है, और उसके बाद we are supposed to do that. We have always seen that. But yeah, it is changing gradually. So that is a good change. I always say that it is a very good change that we should contribute. And I think so it has started now. But फिर भी वही है कि भले हम लोग अगर पूरा भी काम कर लेना, even if a girl starts working and we sit at home, we won't be as good as the mothers are. So it is better for the child also. Okay. वो बेचारे अर्जुन कपूर ने कर दिया वो मूवी में, लेकिन वो रियलिटी में वो आई डोंट थिंक सो मैं उसके बाद वो भी नहीं कर पाया. एंड जैसे आफ्टर बिकमिंग पेरेंट्स, यू एज कपल्स, आप लोगों में झगड़े ज़्यादा बड़े हैं या प्यार? सच सच बताना. मैं बताऊं, ये बताऊं, Whoever. तुम जाओ मंथन भाई, पहले जाओ, जंग पहले तुम लड़ो. इसमें क्या होता है, पहले साल तो हनीमून होता है,
हमारे दूसरे साल में वो Baby हो गया। she was pregnant। Okay. तो पहला साल तो झगड़ नहीं सकते, दूसरा साल पहला तो झगड़ सही नहीं चलता सकते है। क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। तो क्या होता है कि इनिशियल 2-3 इयर्स में वो टर्बुलेंस ज़्यादा होता है, एंड देन 5-6 साल बाद तो यू गेट टायर्ड ऑफ फाइटिंग, देन यू लीव इट। you know, झगड़ के करने का है। I think my experience says that the first 5 years are the most toughest. Yes, exactly. You know, मुझे ऐसा लगता है कि ये सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, ये वाली phases हैं. The first 5 years are difficult for any couple, whether it's a love marriage, whether it's arranged marriage, whether it's just being together. Once you start understanding, और मुझे again I'm admitting to the fact कि मुझे तो उस person को समझने में 15 साल लग गए. 15 years, and now I have realized that, you know, this is her personality, good, bad, ugly. You have to accept it, whether irrelevant whether she accepts me as the person I am, but I have to accept her for a very cordial kind of a. और झगड़े होते ही है यार, झगड़े होते ही है, because every point of view, हर दो ह्यूमन बींग्स जो इस छत के नीचे रहता है वो अलग है. इस बात को सबसे पहले तो समझ लो. लोग कहते हैं ना कि बच्चा होने के बाद प्यार बढ़ जाता है, बट द रियलिटी आई थिंक इज वेरी डिफरेंट, कि डिफरेंसेस भी उतने ही बढ़ जाते हैं. हाँ, हो जाता है, बट इट्स अ बैलेंस. ऐसे नहीं कि तुम 24 घंटे लड़ते रहो और 24 घंटे तुम एकदम पैली हो, मारो सोनो हो, मारो बाबू, ऐसे भी नहीं हो सकता. यू नो, सो इट इज़ अ बैलेंस. झगड़े के टाइम झगड़े करो और एकदम डट के झगड़े करो, और प्यार करो जब डट के प्यार करो. सिंपल. राइट. No, for the first 6 months during the first baby, okay? First baby के बाद तो दोनों clueless. So we didn't know what to do यार, क्या हो रहा है, क्या करना है, कब सोना है, कब उठना है, कब काम करना है, कब मुझे जाना है, कब आना है, मुझे कुछ नहीं पता है. Okay, so work life is some here and there, ऐसा ही सब चल रहा है. So the first 6 months are truly very difficult. हम लोग खुद ही adjust कर रहे थे. We were also pretty young back then. तो वही है कि पहले 6 महीने मेरे को तो हुए थे झगड़े, ठीक है. एंड दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ माई इम्पेशंस. आई फील कि तभी मैं थोड़ा पेशेंटली डील करता. नाउ आई फील कि तभी थोड़ा कूल काम रहना चाहिए. दैट इज आई टेल एवरी वन कि तभी थोड़ा संभाल लो, 6 महीने संभाल लो, फिर यू विल बी सॉर्टेड. बट पोस्ट 6 months आई थिंक सो आई हैव हैड अ लव मैरिज, और शादी के 3 साल बाद वी हैड अ बेबी. तो उन 3 साल से भी ज़्यादा आई थिंक सो आई हैव स्टार्टेड लविंग हर, रिस्पेक्टिंग हर एंड केयरिंग फॉर हर. सो द रिस्पेक्ट level has gone on another level. जैसे ये डिफरेंसेस ना आए तो आफ्टर बिकमिंग पेरेंट्स क्या ऐसे कुछ कॉमन रूल्स आप लोगों ने बनाए थे सो दैट यू कैन सेल दिस पेरेंटिंग जर्नी वेरी स्मूथली? गिव मी वन रूल ईच. अगर आपने सिंपल रूल है कि उसका सुनो. हाँ बस सुन लो चुपचाप. यू नो, कितना भी तुम ग्रम्पी मूड में हो, फ्रस्ट्रेटेड मूड में हो, प्रोफेशनल लाइफ की लगी पड़ी हो, उसको सुन लो, उसके हाँ में हाँ उस वक्त मिला लो. ठीक है, उस वक्त तुमने अगर उसको ना बोला तो तलवारें निकल सकती हैं. अब मैं समझाऊं इस बात को. तो मैंने जो एक मेंस ईगो होता है ना, जो एक अहंकार या जो घमंड होता है कि मैं पति हूँ, मैं हूँ, ये हूँ, वो सब मैंने, हाँ वो मैं इसलिए मैंने इधर छुपा गया. इधर ही अच्छा है वो सब मैं अब भुला चुका हूँ. एंड आई एम जस्ट के हाँ तुम बिल्कुल सही हो, बस ऐसे मेरा बोल भी के. इसके दैट्स द सिंपल रूल. आराम से. और ये मेरे ख्याल से ये यूनिवर्सल है. इस बात को पुरुष, आदमी, मर्द, मैन जितना जल्दी समझ ले उतना ज़्यादा बेहतर. हाँ, और घर में वो बॉस है, घर के बाहर हम बॉस हैं. वाह. ये तो है ही. हाँ, ये तो मतलब दोनों यू जगह हैव वही टू boss. लर्न दिस. हाँ, सबसे पहले तुमको यही सीखना है. सीख लो कुछ. नहीं हम दूसरी साइड लाए नहीं है अभी तक. राइट. तो अब मैं कुछ इमोशनल शेयर करती हूँ अपने जर्नी में से. लाइक व्हेन आई वाज गोइंग टू डिलीवर, मतलब डिलीवरी से पहले डॉक्टर ने कह दिया कि इट इज़ गोइंग टू बी अ सी सेक्शन डिलीवरी. ठीक है, तो आई वाज ओके, मतलब मैं तो रेडी थी, यहाँ तो सी सेक्शन होगा या नॉर्मल होगा, डिलीवरी है, चलो अभी करना है. माई हस्बैंड वॉज नॉट रेडी कि भाई सी सेक्शन होगा, ऑपरेट करना पड़ेगा, उसके लिए बहुत बड़ी बात थी. सो जब मैं ऑपरेशन थिएटर में मुझे ले जा रहे थे, मैं नर्स को बोल रही हूँ भाई मेरे हस्बैंड को बुला दो, कहाँ है? तो मेरी मम्मी आई, बोलती है भाई वो तो ऊपर रूम में जाके रो रहा है कि भाई इसका सेक्शन होने वाला है. मैंने बोला भाई बुला तो दो, मिल के जाऊँ. एंड ही कम्स, मैं उसको कंसोल कर रही हूँ, भाई कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो आई विल बी ओके, मतलब जो उसको करना है.
So this was the moment where my husband, he was very overwhelmed, very emotional, बहुत डरा हुआ था. Any one experience या ऐसा कोई memory from your pregnancy journey, motherhood journey, where you became very overwhelmed and emotional? When the first kid came in my hands, I was like, well, obviously I was very teary-eyed and I was like, मतलब हाँ ये हो वाओ, मतलब मेरे को, मतलब ये मेरा बच्चा है, you know. मुझे पता ही नहीं चलता था, मेरे को बोलते थे इधर रख Exactly, right? आई यूज्ड टू फेक अराउंड, अरे हाँ 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 लाट लाट. उसके बाद मुझे वो यार म्यूचुअल फंड कितना है यार. So बाद में सब सेविंग ये सब विदाई दिए थे. हाँ, that happens. So all those things started happening. So I was very, I'm an emotional person. वैसे भी आप मेरे को कोई भी बात बोलोगे तो मैं ऐसा रोना स्टार्ट कर सकता हूँ ऐसा. Let me give you that trigger. So I was crying like a baby that day. और the most I was so full of anxiety because I was doing my show. मैं लाइव शो कर रहा था रेडियो सिटी में. That was the time my father-in-law called कि बेटा, and they are in अंकलेश्वर. So बेटा तुम निकलो because इसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं. And it's a early morning show. तो जस्ट शो स्टार्ट किया था एंड 8 o'clock आई लेफ्ट एंड द वे आई वॉज ड्राइविंग ऑन दैट हाईवे, मैं लिटरली वो 1.5 घंटे का ड्राइव में पागल हो गया था. एंड आई रीच द हॉस्पिटल और ये तो आराम से बैठी हुई है, कुछ फ्रूट खा रही थी. मैं बोला अरे यार तेरे को तो कुछ बोला नहीं, अभी तो है टाइम. बट दोज मोमेंट्स रियली मेक यू फुल. और सेकेंड जब हुआ तब भी ऐसा ही हुआ. दैट टाइम आई वॉज इन रेड FM, तभी भी मॉर्निंग शो कर रहा था. माई फादर इन लॉ कॉल्ड एंड बाय द टाइम आई रीच दिस बॉय वॉज आउट. तो लड़के थोड़े से जल्दी होते मेरे को, द गर्ल्स टेक सम टाइम. हड़बड़ी में. For me also, like we are two brothers और मेरे बड़े भाई को भी he has a son, so all of us eagerly wanted a girl in the house. Okay, कुछ भी मतलब जो भी है बच्चा तो बच्चा है, we'll always love that, but we always wanted कि हाँ भी एक लड़की है, लड़की. इतने साल से कोई आया नहीं लड़की. So when the nurse came out के जोएलो बेबी छे ऐसा, and I went in, oh I can't forget that day. Baby बाबो નથી. But yeah, good यार, मतलब I can't forget. And I was crying ऐसे hugging everyone. पता भी नहीं कौन मेरे को आके पकड़ के चुप करा रहा, हो गया भाई तेरा बच्चा. मेरा तो वो फनी इंसिडेंट ये था दैट आई शुड नॉट से दिस, बट वो डॉक्टर बड़ा खड़ूस था यार. वो हंसता ही नहीं था, स्माइल ही नहीं करता. मेरे को ऐसा आई यूज्ड टू फील सो अनकंफर्टेबल. इससे पूछू कैसा, ऐसा कुछ भी पूछो ना, डॉक डू यू थिंक दैट विल बी डन, ऐसा जवाब देता. तो मैं बोला यार ये ठीक नहीं लग रहा है मेरे को. बट व्हेन शी वेंट टू द लेबर रूम, आई थिंक आई रिमेंबर इट वाज 1:45. सो ही जस्ट केम एंड कि चलो चेक कर लेते हैं. एंड एट 2:20 माई बेबी वॉज इन माई हैंड. इट वॉज अ नेचुरल बर्थ. और मैं बिलीव ही नहीं हो रहा था. और मैं नर्स को पूछ रहा कि मेरी है ना, ये तो अभी गई है, इतनी जल्दी कैसे हो सकता है. बोला हाँ तुम्हारी इच्छा ले लो. क्योंकि मेरे हाथ में आ गई. एंड आई रिमेंबर इट वॉज वेरी वेरी फनी दैट टाइम. अभी हमने आपकी वाइफ्स की बात कर ली, लेट्स कम टू योर मॉम्स. सो जब मैं बोलती हूँ योर मदर, व्हाट इज़ दैट वन थिंग या मेमोरी दैट कम्स टू योर माइंड? So I have been a single child and I lost my mom when I was 26. But a mother is something, and that emotion is something that is too strong, and the bond is too. She was the closest person to me, right? And it's just overwhelming to talk about her right now. And you know, whatever memories I have with her, they are very close to my heart. And You miss her. yeah, of course. It's the strongest bond that I had, right? Yeah. And I also learned a lot of things in the process after her, that if I can do without her, then I can do without anything and anyone. So that has made me very strong as well. That if the person I love the most, if I can do without her, then there's nothing in the world that can stop me from doing anything that I want. I think same is the case with me. I lost my dad when I was 16. I lost my mom when I was 23. Today I'm 48. So I'm 25 years pretty much on my own. But in this 25 years, not a single day has passed where I have not missed my mother, when I have not looked at her picture in stress or in happiness or whatever it is. And I think she was an incredibly strong woman. मतलब मुझे अगर ऐसा लगता है, and it's the case with all the children, मुझे मेरी माँ से बड़ा, ये थोड़ा सा वनीला टाइप्स लगेगा, बट मुझे उससे बड़ा भगवान दिखता ही नहीं है.
you know, because she was such a strong woman. She used to wake up 7 o'clock in the morning. I was in Bombay that time, so we used to stay at Chembur, and she used to go to Worli at Glaxo Pharmaceuticals. She would work the whole day. She would come back in the evening, pick me up from my nani's place, take me back home, cook food for me, my schooling, this and that. And I feel that उस औरत ने कितना कुछ किया, and she did not get the happiness or the contentment that she deserved. You know, so वो एक मलाल मेरे को जिंदगी भर रहता है कि मैं मेरी माँ के लिए कुछ कर ही नहीं पाया, though she had done so many things for me. And you know that, you know, when we say that a mother is strong, मुझे लगता है that she was the perfect definition of managing family finances, because I lost my dad, so she had to manage the finances also. We were upbringing at that time, I was in my teens, तो मेरे नखरे, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, constant comparison, और उसने सब कुछ किया, but in return she did not get anything. So वो एक चीज़ हमेशा मेरे पास ऐसी रहती है, that wish I could do something for her. Even today when I'm in super stress, I just go and I just talk to her, and I don't know, it's magical, it's divine or what, वो problem solve ही हो जाती है. मदर्स आर सो स्पेशल. उनकी डांट में भी प्यार ही होता है. देर इज नथिंग लाइक कि मतलब वो गुस्सा कर रहे हैं तो उसमें उनका कुछ सही नहीं हो रहा है. सो मॉम्स तो अलग मिट्टी की बनी है. एंड अबाउट माई मॉम, लाइक शी इज़ अ वेरी फ्रेंडली लेडी, वेरी फ्रेंडली. सो मेरे तो लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स आए ना अभी तक, जितने भी आते हैं, मेरे बच्चे हो गए हैं, 2 बच्चे हो गए, शादी हो गई, वॉट एवर इट इज, द फर्स्ट पर्सन व्हेन आई एम इन ट्रबल, स्कूल में अपने कुछ गलत काम कर दिया, कुछ भी किया, आई हैव डन whatever I've done in life, जो भी गलत किया तभी जो भी. So the first person when I used to be in trouble, it was mom, not a friend. कि ऐसा नहीं कि मैं किसी दोस्त को कॉल कर रहा हूँ, देख ब्रो मेरा ये हो गया. It was my mom. So she stood by me when I was wrong. भले ऐसा नहीं कि मेरे को encourage नहीं कर रही थी वो. बाद में जब भी when I was settled तभी एक थप्पड़ भी पड़ रहा था. But when I needed her, she was there. Yeah. So वो है कि माँ खड़ी रहेगी, हमेशा ही खड़ी रहेगी. And like I feel blessed because my mom genuinely listens to me. अभी तक यार क्या है यार, मेरी बीवी के साथ भी झगड़ा होता है तो मेरी माँ को मैं बोल देता हूँ यार. And she is the best advisor to me कि देख यार, like, and she understands my wife also being a woman. So this is a better situation for me also कि ये better कर रहा है ना मेरी love life को भी better करने में. She advises, she's a friend basically to me. So yeah. तो ऐसा कोई एक सैक्रिफाइस जो आपको याद हो कि मेरी माँ ये करती थी, दिस सैक्रिफाइस शी यूज्ड टू डू. So my mom was a dentist. So morning 10 to 12 she used to have her practice, and then दोपहर को I used to come from school and my dad used to come from office and we used to have. So पूरा सुबह से लेके, जैसे आशीष ने बोला, सुबह 6 बजे उठ के you know meals रेडी करना से लेके पूरा हाउस होल्ड रेडी करना, मुझे तैयार करना, sending me to school, going herself to the clinic, working, coming back, making the food or whatever, obviously with the help she had, but still she had to prepare and everything. And then शाम को वापस क्लिनिक जाना, वापस घर आना, वापस रात को डिनर. Isn't this, oh my god, like overwhelming? It's उनके बारे में it's a कुछ never ना ending सोचना. schedule. And आज जितना हाउस हेल्प या जितना लग्जरीज आज है, उतना नहीं था उस टाइम पे. Right. When we were growing up, इतनी लग्जरीज नहीं थी. So the way you know whole of India has grown, उस तरह से उस टाइम पे बहुत सिंपल था, जमाना बहुत सिंपल था. And they used to be, you know, absolutely giving. And my mother was a big philanthropist, so she used to donate so much, even at the time when we had little less. That time also she used to give so much. मतलब हमारे घर के बाहर पे डॉग्स को खाना, वो गर्मी के टाइम पे there was pots and everything for चिड़िया के लिए भी होता था. चिड़िया, squirrels, oh my god, मतलब वो जो करती थी ना, पूरा मोहल्ला नहीं कर सकता इतना, that one single lady used to do. So you know, mothers are givers, that's what I tell. So वो and to the unprivileged also, to the less privileged, to the mentally, everybody, like we used to say in Kareli Bagh. So all the social organizations were all in touch with her. this I can choke on this, Yeah. but ये ऐसा टॉपिक है,
when she's not here to talk about her, it's very difficult. So when I finished my graduation, मेरे को businessman बनना था, तो मैंने एक restaurant चालू किया था, and I had no idea about restaurant, but करना था तो कर दिया, and I was in tremendous debts. You know, मेरे को ऐसा लगा कि यार this is just a failed project at any extent, and at that time she was not well, and बहुत सारे डेटर्स के कॉल आते थे कि कब पैसा दोगे, ये करोगे, वो करोगे, थोड़ा थोड़ा करके आई ट्राई टू फिनिश अप, फिर भी थोड़ा बच गया था, एंड देन दे सडनली स्टॉप्ड कॉलिंग मी, you know, they did not call me for 6-8 months, and then one sudden day I just met that person. So at that time मैंने उनको पूछा कि आपका फ़ोन क्यों नहीं आता है, बोलते नहीं वो तो आपकी मम्मा ने कब का हमको पैसा दे दिया, एंड दैट टाइम माई मॉम वॉज नॉट देयर, शी हैड एक्सपायर्ड, एंड आई फील कि मैं उसका कैसा उसको That's माँ. सो नहीं हो सकता है, उनका कोई उसका कोई लेवल ही नहीं है आप पे सैक्रिफाइस, आँच भी नहीं आने देगी. एंड आई स्टिल लुक एट अ फोटो एंड आई सेड दैट व्हाई डिड यू डू दैट, यू डिडंट हैव टू डू दैट, बट शी डिड इट. when we were growing up, तो पूरा बड़ा करना हम लोग को, that is itself a very big sacrifice. कि वो अपने luxuries को तो छोड़ ही देते, right? पर अभी तक वो कर रहे हैं, as dadis also they are doing it. So that is a thing. And मेरा कैसा है कि we had a comparatively a tough financial phase also. So to give, like, ladies and women have this, no, के jewelry, whatever शौक होते हैं, every woman has it, right? सबको वो होता है, या जो भी luxuries, but she made it a point that या मैं सिंधी घर का हूँ, हमारे लिए होता है धंधा, धंधे में जाएगा बच्चा, बट शी मेड इट अ पॉइंट, नहीं मेरे बच्चे एजुकेशन में, आई विल सेव इट फॉर देयर एजुकेशन, उनके लिए मैं करूँगी जो भी कर सकती हूँ, एंड शी मेड इट अ पॉइंट कि हम लोग अच्छे से पढ़े, एंड लाइक या माई ब्रदर इज़ अ मरीन इंजीनियर, सो उसके लिए भी सब कुछ जो हो सकता है, तो शी टुक स्ट्रॉन्ग स्टेप्स, सो सैक्रिफाइसिंग ऑन हर लग्जरीज भी, और रेगुलर लाइफ में भी बहुत कटोकटी थी यार. To be very honest, it was a very difficult time, and she never complained, not even once. I don't remember it once in life. ऐसी कोई चीज़ जो आपकी माँ आपको बोलती थी एंड यू वुड लाइक टू टेक दिस अहेड, और आप अपने बच्चों के लिए सेम चीज़ करना चाहोगे? आई थिंक लव, अब रियलाइज हो रहा है आधी उम्र शायद निकल जाने के बाद कि इट्स ओनली फैमिली एंड इट्स ओनली लव दैट मैटर्स. बाकी तुम्हारा ये टेम्पररी गुस्सा, तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन, तुम्हारा दिस दैट प्रोफेशनल लाइफ में ऊपर नीचे, ये सब के लाइफ में है, ये मुकेश भाई अंबानी के भी लाइफ में है, ये अडानी के भी लाइफ में, ये हुज हु के लाइफ में है, ठीक है, बट योर फैमिली इज़ द कॉन्स्टेंट थिंग इन योर लाइफ. जब तक आप जिंदा हो उसको प्यार दो, एंड डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न. The moms are the most underrated, you know, people in our lives. When mom is there, mom तो है ना, mom कहाँ ले जाएगी, लेते हैं. mom तो कहाँ जाने वाली है. So वो एक बहुत we taken for granted वाली सिचुएशन होती है, but उनकी वैल्यू तभी होती है जब वो नहीं होते. You guys come over to my place to meet my mom. Yeah. नहीं, I'm just saying because why? Because you know a lot of kids, a lot of people don't realize it. Yeah, I feel यार अभी भी हम And mom only wants one thing, वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं. यार अभी भी मैं तो when I'm in a bad mood, और खराब दिन चल रहा है, खराब टाइम चल रहा है, whatever is happening, एक माँ को हक करते हैं ना, तो तुमको एक अलग फीलिंग आती है. बट वही है वो ना, वाइब भी अलग होता है कि मतलब यू फील सिक्योर, लाइक आई एम 32, अभी भी मैं गले लगाता हूँ, मेरे को वो बच्चे वाली फीलिंग ही आती है अभी भी कि आई एम सेफ हियर. सो दैट ओनली अ मॉम कैन डू. माई वाइफ स्पीक्स टू हर मॉम एवरी डे मॉर्निंग. 8 बजे उनका फिक्स्ड कॉल होता है. हाँ मम्मा क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे, रोज का रोज वही बात है, क्या बना है, उठ गए क्या, चाय पी ली. मुझे इतना इन्फीरियर फील होता है कि मैं ये क्यों बात नहीं कर पाता. यू नो व्हाई कांट आई पिक अप अ कॉल एंड टॉक टू माई मॉम. और मैं ऐसा मस्ती में भी बोलता यार मुझे भी बात करनी है. तो वो एक्सप्रेशन या वो इमोशन आपकी वाइफ या आपके बच्चे कभी समझ ही नहीं पाएंगे दैट कितना हॉलो हम लोग फील करते हैं विद इट. दैट्स द स्टैचर ऑफ अ मॉम. वो इररिप्लेसेबल है. दुनिया में हर चीज़ आपके घर में, आपके लाइफ में रिप्लेस हो सकती है. घर, गाड़ी,
एवरीथिंग, मॉम कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, वो एक नहीं हो सकता। एंड लाइक आप लोग तो दोनों जनरेशन की मॉम्स के साथ रहे हुए हो, सो टेल मी फ्रैंकली, मदर्स जो आपकी मॉम्स हैं उनकी पेरेंटिंग एंड आज की मॉम्स की पेरेंटिंग में क्या डिफरेंस है एंड विच वन इज बेटर? ट्रिकी क्वेश्चन। जमीन आसमान का फर्क है। बहुत मैं तो बहुत ऑनेस्टली बोलूँगा, ज़मीन, लाइक व्हाट मंथन सेड दैट कि आज की तारीख में वी आर वेरी, मुझे ऐसा लग रहा है दैट आई एम इन अ ग्रेट कंपनी एंड आई एम श्योर दैट मोस्ट ऑफ द पीपल वी आर टफ डैड्स। मतलब हम लोग अपने घर में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे कंफर्ट में। अगर आज मेरे घर में हाउस हेल्प चाहिए तो मैं बंदोबस्त करूंगा, आई विल मेक श्योर मेरे घर में 4 चीज़ें चाहिए तो विल गो आउट ऑफ द वे एंड विल मेक श्योर सो दैट आवर फैमिली इज कंफर्टेबल। वो टाइम पे ऐसा फिलॉसफी ही नहीं था, ये तुम्हारे पास है इससे काम चलाओ, चल रहे हो तो खुश रहो, नहीं चल रहे हो तो इट्स योर प्रॉब्लम। वन लास्ट क्वेश्चन ऑन मदर्स, कि अगर आपकी माँ ये पॉडकास्ट ये एपिसोड देख रही हो कहीं से भी, वन मैसेज दैट यू वांट टू लीव फॉर योर मॉम? I'm doing good, mom. Don't worry. Things are good and I love you the most. हाउ स्वीट। बहुत हो गया, अभी वापस आ जाओ बस। एंड आई थिंक व्हेन माय डॉटर विवियाना वाज बोर्न, मैं रो रो के वही बोल रहा था कि मेरी मम्मी वापस आ गई। एंड नाउ आई रियली फील दैट शी इज टर्निंग आउट टू बी माय मॉम ओनली। पापा व्हाट इज दिस, गो टू द जिम, व्हाई यू हैविंग चीज पाव भाजी एट दिस टाइम, ये सब आने लगा है मेरे पे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फॉर्म में आ चुकी हैं। हाँ, अभी आई हैव किड्स, तो मेरे को ऐसा होता है कि मेरी माँ ने जितना मेरे को दिया है, मेरे साथ जितना टाइम स्पेंड किया है और मेरे अंदर जितने वैल्यूज़ डाले, शी हैज़ बीन अ लेडी ऑफ वैल्यूज़, कि अच्छा इंसान अच्छा होना चाहिए, तो वो मेरे बच्चों में भी वो वैल्यूज़ पास ऑन करे एंड ऑलवेज बी माई गॉसिप पार्टनर। प्लीज़ कंटिन्यू डूइंग दैट। अमेजिंग, लवली। नाउ लेट्स टर्न द टेबल। मॉम्स के बारे में हर कोई बात करता है, हमने भी आज बहुत सारी बात की है, बट डैड्स के सैक्रिफाइसेस, डैड्स का पर्सपेक्टिव, उसके बारे में बहुत लोग कम बात करते हैं। एंड डैड जो भी करते हैं इट्स ऑलवेज बिहाइंड द सीन्स, जो दिखता नहीं है, ज़्यादा शोर नहीं मचाते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। सो जब लोग बोलते हैं माँ को इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती है, हर कोई माँ की केयर कर रहा है, मॉम सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तब हाउ डू यू गाइस फील? सच बताओ। We don't feel anything. We feel it's नहीं, we give all the respect to them, and because see dads, like we are, जैसे माँ देती है वैसे हम भी देते हैं, but we give in a very silent way. Exactly. We don't yell out loud. We don't do any तमाशा. हम जो भी है हम हमारा काम करते हैं. We don't want any publicity. We don't want any consoling. कुछ नहीं चाहिए, हम सिर्फ हमारा काम करते हैं, and we do it religiously, and we have to do it, right? मैंने पहले ही बोला कि we are the bread earners and we have to do it. There is no you can't cry or cry, whatever, you can't do anything about it. You have to get it for the family, and that's ये है a तो है। simple thing. I think for me, sending, making them ready, daughter is now on an automated mode, वो खुद ही तैयार होके सब जाती है, but the younger one को उसको तैयार करना, उसके लिए breakfast करना, उसका डब्बा कभी कभी मैं कर देता हूँ, and that is one of the most fulfilling things to start your day with. और वो मैं जब कुछ और बोल रहा हूँ, तू कोई और ही टॉपिक पे जा रहा है, तो मेरे को बैंड बजने वाली है मेरी। ये दूसरी बार ऐसा मैं हुआ। दूसरा चीज, अच्छा ठीक है चलो, मैं एक अच्छा बाप नहीं हूँ। हाउ डू यू फील जब I feel- मॉम्स को सिर्फ इम्पोर्टेंस मिलती है? नहीं, मैं खुद बोल, मैं तो सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ। मैं तो बोल देता कि आई एम द बेस्ट। मैं तो बोल देता कि यार पापा क्या है ना, तो बोला अरे यार पापा रोज यही पूछते हो। मैं बोला 10 में से कितना, तो बोलते 8 में। 2 क्यों काटे, मैंने क्या किया? तो मैं तो अपने मार्क्स खुद ही ऐसे टिक मार्क करवा लेता हूँ। मेरे को किसी से वैलिडेशन, मैं खुद ही अपना वैलिडेशन। मेरे को क्या है, डिप्लोमेटिक आंसर मत देना, हम लोग नहीं, सही आंसर देता हूँ। मेरे को किसी और का फर्क नहीं पड़ता है। मेरी बीवी को जब भी लगता है ना मैं नहीं कर रहा हूँ, दैट मैटर्स टू मी। वो मेरे को ऐसा उसको लेकिन वही तो मैटर नहीं करना। चाकू तेरे को लगता है कि तेरे को लगा क्या? चाकू तेरे को लगता है क्या? मेरे को ऐसा होता है, ऐसा फील होता है ऐसा कि नहीं, द थिंग इज, तो कितना भी करेगा ना, इट विल नेवर बी इनफ। सो हर कोई बोलता है कि बच्चा होने के बाद एक माँ की लाइफ पूरी चेंज हो जाती है, बट हाउ हैज़ योर लाइफ चेंज्ड आफ्टर बिकमिंग अ फादर? हमारी लाइफ तो काफ़ी हद तक सिमिलर है। ऑफिस जाना है, वापस आना है, बट what changes is the responsibility that is on your head, that because your son is growing up, your daughter is there. Remember, my daughter came in my hands, I was like, इसको बचाना पड़ेगा मुझे।
दुनिया बहुत जालिम है. नहीं वो है feeling. So वो feeling मतलब once my son was growing up, that feeling was not coming. You know, like boys will manage boys है. But when I saw when she's growing up, that feeling of a protective father is very eminent. So there is one thing. I think just being responsible, okay, just delivering the best of your ability. आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते ऐसा भी फीलिंग नहीं होना चाहिए. दैट्स व्हाट आई फील. मुझे नहीं लगता मेरे पर्सनल लाइफ में कुछ भी ऐसा मेजर चेंजेस हुआ है. एंड शी इज़ वेरी फ्लेक्सिबल. अगर इफ़ आई नॉट दैट आई पार्टी अ लॉट और आई एम विद माई फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स आर इन मुंबई, यहाँ पे जो है वो है. बट ऐसा कोई मेरे पर्सनल लाइफ में एज सच चेंज नहीं हुआ है. Of course, when both of them were born, the first 2 or 3 years were difficult because we had to spend more time taking care of it, sleepless nights, whatever. But as such, मुझे नहीं लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आज भी मैं तो 25 साल का ही हूँ, तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता. Initial 2-3 years, so I'm in that phase. Yeah. So मतलब इस फेज में तो चेंज होता है. There are a lot of changes कि मतलब कभी रात को बच्चे नहीं सोए, you're awake till late, morning में one is 1.5 and one is 3.5, तो सुबह में दूसरी को स्कूल छोड़ना है, एक रात को सो नहीं रहा है. I think the advantage with you guys, I think, was you're still into business when you became fathers. Yeah. When I was when I became a father, I was doing a job. और मेरा तो रेडियो शो था, मतलब 7:05 पे मेरे को गुड मॉर्निंग वडोदरा बोलना ही है. तो चाहे मैं 4-5 बजे तक आंखें लाल करके बेटा रोज जा करूँ, कुछ भी करूँ, या इफ़ आई एम पार्टिंग होल नाइट वहाँ पे तो, या रात को बीवी से झगड़ा हुआ तो वहाँ पे तो मुझे फुल एनर्जी के साथ विद्या बालन बनना ही है. गुड मॉर्निंग. सो दैट टाइम इट वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट, बट समहाउ वी सेल थ्रू. डैड्स को डैड गिल्ट जैसा कुछ फील होता है कभी? You see, sometimes ऐसा होता है कि I didn't spend enough time. मुझे कम होता है, मैं I spend lot of time with my kid. Although my wife would disagree. But yeah, मुझे ऐसा कोई गिल्ट नहीं हुआ है कि मैं I would change something about my upbringing. I think the guilt comes when they are asking for a few things and I'm not able to deliver that at that point of time. तो मुझे बड़ा frustration होता है कि ये चीज़ ये मांग रहा है, नॉट दैट कुछ ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी मांग रहा हो, बट वो टाइम पे अगर नहीं दे पाते तो मुझे थोड़ा सा गिल्ट फील होता है दैट प्रॉब्ली आई शुड डू मोर. या इफ़ आई एम एंजॉइंग समवेयर एंड इफ माई फैमिली इज़ नॉट देयर, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार वो भी अगर होते तो और ज़्यादा मज़ा आता. आई थिंक आई एम इन दैट फेज राइट नाउ. वहाँ पे मुझे अकेले कोई चीज़ इंजॉय करने में मज़ा नहीं आता मुझे. नहीं, मेरा तो ऐसा होता है कि अकेले करना भी होता है enjoy कभी-कभी. Sometimes you need that space, right? You need that space, yes. फिर अकेले चले जाता हूँ ना, फिर मेरे को ऐसा होता है, oh shit यार, ये तो नहीं करना चाहिए था. मतलब I wanted my partner to be. Having said that, अगले ही महीने मैं थाईलैंड जा रहा हूँ. Oh nice. मैं नहीं जा रहा, मैं इधर ही. नहीं, वो होता है मेरे साथ तो काफ़ी होता है कि अभी 2 days back I was out and I was like पहले yes boys night. 24 घंटे तक ही रहता है. फिर 2 घंटे के बाद ऐसा लगा कि I wanted my kids around ऐसा. तो जैसे we as moms या we as wives, हम लोग अपने हस्बैंड से एक्सपेक्ट करते हैं दैट दे शुड सपोर्ट अस जब हमको मेंटली सपोर्ट की ज़रूरत है, या मे बी करियर में जो भी हमको सपोर्ट की ज़रूरत. ऐसी कोई सिचुएशंस होती है लाइक यू एज डैड्स या एज मैन यू थिंक कि आपकी वाइफ्स को भी आपको सपोर्ट करना चाहिए उन सिचुएशंस में? दिस इज़ फॉर योर वाइफ्स टू नो. यार कभी-कभी करती है, करना चाहिए, करती है, करती है. तो वी बोथ लाइक हस्बैंड वाइफ आर दैट, मतलब इकोसिस्टम अपना 2 का ही है ना. जो भी है रात को तो 2 है ही है. सो व्हेन आई एम डाउन तो शी इज ऑलवेज देयर, यू नो. And we obviously used, you know, I read somewhere that it makes 100. If you are 30 that day, she'll be 70 that day. Yeah. And if she is 30 that day, I'll be 70 the same day. So we make 2 मिलके 100 बनता है. So that's and वो सब maturity आएगी अभी 2-3 साल आएगी. मेरे को ना. पर अभी तो बोलने दो यार. अभी तो बोल 2-3 साल बोलो. नहीं, मेरा कैसा होता है ना कि sometimes like I'm comparatively younger to you guys in business also, no? So right now I'm in that stage कि जब भी I'm totally into it and everything, तो कभी-कभी ऐसा होता है एक पाइल अप हो जाता है. My wife wants to support me. She supports me 1 time, 2 time, 3 time, 4 time. है ना, अपने तो मर्द है, अपने तो taken for granted तो अपना फितरत में है ना. जितना मिलेगा उतना. हाँ, उतना कम है. तो 8-10 बार जब तक उसका ब्रेक इवन नहीं आता है ना, तब तक
ये सब चलता रहता है। तो तभी वही है कि तभी लाइक एज अ फादर, एज अ मैन, आई शुड बी बेटर इन दैट सिचुएशन, बट तभी वही है कि वो सिचुएशन बेटर हैंडल हो सकती है हर किसी से। दैट इज व्हाट आई फील। So one last thing या one last message as a dad आप लोग बोलना चाहेंगे जो जनरली डैड्स का पर्सपेक्टिव नहीं आता है लोगों के सामने? आई थिंक बिकॉज आई लॉस्ट माई डैड एट द एज ऑफ 16-17, मुझे ऐसा लगता है कि वो डैड जो है ना आर द बेस्ट मेंटोर्स। यू नो, कभी कभी उस मेंटोर को वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। क्या पापा कुछ भी बोल रहे हो यार, ये चेंज हो गया हो गया, बट यू नो देयर इज समथिंग दैट दे नो। उनको कहते हैं ना कि उन्होंने ज़्यादा दिवालियाँ देखी है हमसे। सो आई थिंक दैट आई मिस दैट पार्ट द मोस्ट। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे डैड होते तो शायद वो मुझे मेंटोर करते या गाइड करते मेरे स्ट्रेंथ्स के हिसाब से कि आशीष तुझे यही करना है, वही करना है। मैंने तो जो किया वो मेरे हिसाब से किया, बट आई थिंक अ डैड इज़ ऑलवेज द गाइडिंग लाइन in any kid's life and he should be loved and respected the most. Decision हमेशा बात करके हो सकता है। So I think that's one point. बिल्कुल, अपने बाप की सुनो। एकदम to the point. So if your child is listening to this episode, this podcast, या future में कभी वो सुन रहे होंगे, so one message that you would like to give to your kids? अपने बाप की सुनो। बाप की सुनो वो तुम्हारी तुम्हें एक पैसा दो 10 लाख। So Okay. I think what he says easier said than done. ये होता नहीं है क्योंकि मंथन ने भी बोला कि ये बहुत जालिम दुनिया है। So people will keep attacking you in some form or the other, but you should just stand still and weather the storm. You know, उतना बिंदास रहो, तुम हमारे बेटे हो, तुम्हारा कुछ गलत नहीं होगा, उतना कॉन्फिडेंस, उतना स्ट्रेंथ रखो, बस दैट्स इट। द मैसेज आई विल गिव, स्टे हम्बल, रिस्पेक्ट एवरीवन, वो सब तो है ही, बट किसी का when it comes to your self respect, when it comes like if anyone is backfiring you, be confident to give it back. वो तो स्ट्रॉन्ग बनाना है, जालिम दुनिया है, हम तो हैं ही, लेकिन तुम खुद की जंग खुद लड़ो। मतलब हम तो जालिम है ही, हम तो हाँ, हम तो हैं ही, हम तो और जालिम हमारी हैं ही। बीवियां भी अभी जैसे आपने बोला गुंडी है आज के जमाने मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, तो ऐसा मेरे मुंह में बोला गुंडा आपने बोला, रिवाइंड इट हमारे लिए नहीं, रिवाइंड इट कैमरा में कैप्चर हो गया। बच्चों के लिए, बच्चों के लिए। हमारे लिए नहीं, नहीं, हमारे लिए भी है। हाँ अपनी तो नंबर वन। अपने भी होना ही पड़ेगा यार। Wonderful. मतलब हम मुझे भी- ऐसे आप लोगों की बातें सुन के लग रहा है you guys are कि तुम्हारा wonderful पति कितना अच्छा dads. Yeah. मेरा पति तो बहुत अच्छा है। नहीं, wonderful dads, supportive husbands, you're doing great. So Thank we you. come to an end. Thank you. इसमें सब अच्छा अच्छा लिख के Certificate है क्या? एडिट करना, मतलब हमको सिर्फ बिल्कुल। जो भी पॉडकास्ट का ड्यूरेशन, हमको सब हमारे बारे में अच्छा ही सुन। बस एक लास्ट इंटरेस्टिंग सेक्शन बाकी रह गया है, which is rapid fire questions. वेरी अरे बाप रे, इसके लिए हम बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं है। इस पॉडकास्ट के लिए ही मैं आशीष को आशीष he is the voice and the face of But quick, fire, हाँ। rapid answers देंगे. One question each will go. Okay, ठीक ठीक है. है। First, what's the funniest thing your kid has ever said about their mom? बहु बोल कर ऐसे Mom's most repeated line at home. Your mom's. गधे के बच्चे। One household chore you would magically take off her plate forever. What? I didn't get मतलब एक ऐसा household काम जो you want your झाड़ू, mom बर्तन। not to do. कपड़े। that. यार क्या ही काम होगा? Rapid. बच्चों को सुलाना, तो कौन करेगा? कोई भी कर ले। Dads. कोई भी कर ले। Okay. Which TV or movie mom reminds you of your own mom? Hey, can I'll answer this. हाँ, sorry. क्या है? जाने तो या जाने ना। हाँ थैंक यू वैसे मैं ब्लैंक था Okay. Mom's hidden superpower nobody talks about. Me? Who is answering? आशीष मेरा तो बाईपास हो गया अच्छा. Inner strength, inner strength. Inner strength. What's your guilty pleasure that your mom still teases you about? Serving my food. Okay, अभी तक I don't like picking up my own food, so I get it on the table. सब हाथ पे चाहिए सब हाथ पे तुमको. If you had to cook a meal for Mother's Day, what would it be? for your my, wife. yeah, for my wife Chinese she loves it मेरे को आता नहीं मेरे को सीखना पड़ेगा बट मैं सीखूंगा Good. What was your nickname given by your mom growing up?
आशीष का शॉर्ट फॉर्म वही होता है, आशु ही होता है, so आशु ही होता किसी का फनी निकनेम है यहाँ पे? नहीं। नहीं ऐसे है। इफ यू बाय द वे मेरे को होगा तो कोई बोलने भी नहीं वाला। हाँ फनी ऐसे क्यों बोलेंगे? मेरा जो लास्ट नेम है ना, दैट इज गुलगुले। ओके, इट्स गुलगुले। आशीष गुलगुले। सो मेरे साथ इंसिडेंट ऐसा होता है कि आई हैव वन ऑफ माय को होस्ट, ओके, वो हर शो में जाके एंड वी हैव गुलगुले, मैं बोला तेरी जात को 5,000 लोगों के सामने, और ये हर टाइम होता है। और एक टाइम तो मिका सिंह लाइव इन कॉन्सर्ट में ऐसा हो गया, तो मैं बोला आज तूने ऐसा बोला, फिर नहीं आज तो मैं ऐसा नहीं, और वो जाके वापस वही बोल के आई। मैं बोला बे, तो आई एम That नोन comes with the flow. इन मुंबई सर्कल ऑफ मीडिया, आई एम नोन मोर एज गुलगुले rather than अभी आशीष। नंबर I'll remember. बिल्कुल है। मैं भी याद रखूंगी। One piece of parenting advice from your mom that you totally ignored. आई थिंक आई टर्नड आउट वेल, सो मैंने मेरी माँ का सब सुना है। गुड। सब cutest thing your wife does as a mom. फॉर मी, नहीं, as a mom. फॉर द किड्स, वो रो लेती है। कुछ भी ऐसा, थोड़ा भी ऐसा टीवी में कुछ हो गया ना, ऐसा कुछ बच्चों को, एंड देन माय किड्स से दैट मम्मा जस्ट अ मूवी, तुम नहीं सब और मेरे को अभी हम तीनों को बहुत क्यूट लगता है कि जब हम लोग तीनों ऐसा दिखता है, ऐसा थिएटर में जाए या कहीं पे भी ऐसा, अंजू अब रोएगी, अंजू अब रोएगी। Craziest thing you have done for your wife while she was pregnant at 3 a.m. 3 a.m. I'll नहीं do किया that one. कुछ? Drive, Maggie, all that is the only. अच्छा, you have. क्या किया? She wanted to eat sausage at 3 a.m. in the morning. अच्छा। So क्या मैं बात? रिक्वेस्ट किया गेटवे में कि भाई बनाओ। इमरजेंसी, because she was craving, right? So like and Nice. they did the thing, yeah. Nice. One rule you secretly broke that your wife made for the kid. अरे वो कभी भी डिनर बना के जाती है एंड यू नो वो खाता है, उनको बोरिंग लगता है, तो पापा बर्गर और मैं मैकडी से मंगा लेता हूँ। और बाद में रात को जब वो आती है कभी 11 बजे, तो जो घर में ऐसे पानी पट के युद्ध जो होती है वो अलग लेवल की होती है। मेरा विदा के साथ इट वाज अ स्ट्रिक्ट रूल ना कि कार सीट के बिना बच्चा नहीं नहीं बैठेगा। गाड़िया। अब मेरे को ऐसा बिठा तो आगे सीट ये पे, कैसे दो, करते? चलो बैठे तो, और उस दिन क्या नहीं बैठी है वो ये कार सब सीट सोच में। ले, अभी पिछले 10 साल में ही आया मार्केट में, पहले ये सब नहीं थे। हाँ कार सीट में। As a mother, who is better, your mom or your wife? Come on. माय नानी एंड माय चिल्ड्रन नानी, ऐसा सेफ दोनों साइड से सेफ। मेरे बच्चे की नानी और मेरी नानी। बता ना एक. नहीं 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 नहीं, ये दोनों अपनी अपनी जगह है यार। One thing your mom cooks. No, I can't. Your mom cooked that even today no restaurant can match. मसाला डोसा। अरे Wow. क्या बात है। Lovely. So we come to an end of this rapid fire. Great. Finally, होना चाहिए तारे जमीन पर वाली फीलिंग आ रही। amazing. So मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगी. I think mothers जितनी important हैं उतने ही dads important हैं. I would say rather dads ज़्यादा important हैं for us as mothers, because वो जो role behind the scenes play करते हैं ना, वो किसी को दिखता नहीं है and वो silently बहुत कुछ कर जाते हैं जो हम लोग ज़्यादा कहते नहीं हैं. So yeah, thank you guys. Thank you so much, for Sonia. being the dads you guys are. हमको ना मेंस डे पे कोई याद करता है, ना कोई फादर्स डे पे याद करता है, ना हमको इंडिपेंडेंस डे पे याद करता है। आपने मदर्स डे पर फादर्स को याद किया, हाँ, इससे हाँ, ज्यादा यार। खुशी 2025 में और कोई Thank you. याद तो किया। No, it was lovely having you and हम खुद ये पॉडकास्ट कैसा- इस टाइम ये तक कैसा फादर्स मेरा तो धंधा है ना, हाँ। आई एम इनटू केक। फादर्स डे चलता ही Moms नहीं Unmuted. है, मदर्स डे इसका होना चलता चाहिए है। फादर्स एंड म्यूजिक। special सही बात edition है। fathers and इसको ऐसा तुम कट करके ऊपर फादर्स लिख म्यूटेड। मार्कर से, Good. है ना? Good idea. So thank you so much for being here, for sparing your time. थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। लवली। सो गाइज, अगर इस एपिसोड ने आपको थोड़ा सा भी हंसाया या आपको अपनी माँ की याद दिलाई, डू नॉट फॉरगेट to share this episode with your mom, with your wives, and with all the parents out there. Happy Mother's Day, and do not forget to like and comment on this episode. Thank you.